Hello friends, today we are going to discuss about the one of the important topic of mathematics, that is linear equations in two variables. This lesson is so very important. Okay, this lesson, you know that it is a linear equation. Now what the linear equation means? Linear means which is concerned with the line. So this, why it is called equation? Now what is equation? Now equation means something that is an expression which is having an equal sign. So linear equation means which represent a line and there is an equal sign in it. Now the linear equation can be of one variable. In the lower standards we see that, for example, 5x plus 1 is equal to 3. It is a linear equation with one variable because only x is there. Okay, now here it is. In this lesson, okay, we are going to discuss about the linear equation with the two variable. इसमें दो वेरिएबल होगा और x और y ऐसे दो वेरिएबल होगा, that is with two variable. Okay, so normally it consists of how to solve this. Solve this means solving linear equation means we are finding the value of x and y. X और y का value find करना है. Now many methods are there. In the lower standard we studied about the elimination method, substitution method, etc. This year we will study the graphical method and Cramer's rule. Also we will study how this equations can be transformed into linear. That is, some in the given format it won't be a linear equation, but we can convert it into a linear equation. Also the application of the simultaneous equation. Okay, linear equation with two variables also called as simultaneous equation. So okay, let's see what actually there in it is. So here on activity, okay, complete the following table. Now in it, okay, what is given is we have to find that whether the given equation is a linear equation. Now look how we can understand the linear equation. When the given expression, now the first of all, okay, you may understand that when it become a, what is mean by linear equation. Linear equation बोलेगा तो क्या है? That is, first you must have to understand that our एक equation का degree, okay, क्या है? Degree, okay, अगर 1 रहेगा, okay, degree क्या होना चाहिए? 1 रहेगा. ओके अगर डिग्री 1 रहेगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर बोल सकते हैं. करेक्ट. अभी डिग्री बोलेगा तो क्या है? डिग्री बोलेगा तो ग्रेटेस्ट पावर. ओके, इट इज द ग्रेटेस्ट पावर. ओके, अगर ग्रेटेस्ट पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा तो उसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर, ओके, बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ओके, 5x ओके प्लस 3 इज इक्वल टू 1. अभी देखो ये एक इक्वेशन है. क्यों इक्वेशन है? बिकॉज व्हाट इज देयर? इक्वल टू साइन इज देयर. सो एन एक्सप्रेशन विथ एन इक्वल टू साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ठीक है. ओके, देन we can say here the variable. Now what is called x is called variable. This 5, 3, 1, etc. are the coefficients, we can say. Okay, it is the coefficients. Now here the variable is x. Now variable's power means here you know that it is x raised to n, then n is called the power, it is called. Okay, now here only x is there, then we have to understand that what is the power is 1 is the power. Understand? Okay, now like that, okay, x square, now what is the power is 2 is the power. Okay, समझ रहे? So that ये जो ओके इक्वेशन में अगर 5x, देखिए 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, इसमें इधर 1 है और कुछ है नहीं है, तो ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इट इज ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. नाउ दूसरा एक, दैट इज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अभी देखो ये इक्वेशन में ओके वेरिएबल x है, इधर भी x है. ओके, 1 वेरिएबल है. अभी इसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है? इधर 2 है
ओके अगर ग्रेटेस्ट पावर 2 है तो बोल सकते हैं क्या ये लीनियर है करके? नहीं बोल सकता। वाई? देन इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी सो दैट नाउ ये क्या है, 5x plus 3 is equal to 1, ये क्या है? इट इज द लीनियर इक्वेशन विद द वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। ऐसा दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, 2x है प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ओके सो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल्स। ओके नाउ हियर सो डिग्री आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ ये लीनियर इक्वेशन विद द टू वेरिएबल को अपन कैसा डिफाइन कर सकता है? ओके अभी देखिए, अगर एक इक्वेशन का जो फॉर्मेट, ओके अगर एक इक्वेशन का फॉर्मेट ओके ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, understand ax plus by is equal to c where a b c are real numbers, a b or c are real numbers, belongs to real numbers. Okay and x and y are what it is, variables. Okay then we can say that what we can say, this is a linear equation with the two variables. Okay which are the one variable? X is the one variable, y is the other variable, understand, with the two variables. So this is the format. So you understand that okay about the linear equation. So in order to become an equation, एक equation बनने के लिए क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, सॉरी इक्वल टू होना चाहिए। ओके सो अगर एक एक्सप्रेशन अभी देखिए, अभी 2x प्लस 7 इज ग्रेटर दैन 5, ऐसा भी तो लिख सकता है। अभी ये इक्वेशन है क्या पूछेगा तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इधर ग्रेटर देन साइन यूज किया है। अगर उसका जगह पे इक्वल टू साइन होगा तभी जाके वो क्या होएगा, इसको इक्वेशन माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके सो इट इज लाइक। अभी देखिए नो ये जो इक्वेशन में ये इक्वेशन इज गिवन, इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन है तो अभी कंडीशन क्या है? ओके एक तो x और y का पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ग्रेटेस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कुछ भी आया ओके अदर देन 1 ओके कुछ भी आया तो क्या होगा? वो लीनियर नहीं होगा। श्योर? और ए बी सी क्या हो सकता? कुछ भी हो सकता, दैट इज देयर, वो कुछ भी नंबर आ सकता है। ओके दैट इज रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर बोलेगा तो सब रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता, फ्रैक्शन भी आ सकता, रूट भी आ सकता, कुछ भी आ सकता। ठीक है, जो नंबर अवेलेबल है सब कुछ आ सकता है। अंडरस्टैंड? सो रियल नंबर होना चाहिए और एक्स और वाई का पावर। अंडरस्टैंड? तो ये अपन को इसमें कंपेयर करना है। अभी फर्स्ट इसमें देखिए, अभी हियर इट इज ओके 4m plus 3n is equal to 12। अभी देखो टू वेरिएबल, विच आर द वेरिएबल हियर? ओके m इज द वेरिएबल एंड n इज द वेरिएबल। यस श्योर? अभी उसका पावर देखिए, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, बराबर है। अभी 4 3 12 रियल नंबर है। यस ओके ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। अभी दूसरा देखिए, अभी इधर तो 3x स्क्वायर है, बराबर, इधर 3x स्क्वायर है। ओके इधर तो 1 है, मगर अगर इधर स्क्वायर है तो इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज okay it is having 3x square, because of 2x square 3x square it is not a okay linear equation। अभी देखिए here, अभी इधर √2 चलेगा, ओके माइनस √5 चलेगा, x और y का पावर 1 है। यस ओके इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन तो है ही, सो दैट इसको भी क्या बोल सकता? इट इज यस इट इज ए लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड? अभी दूसरा देखिए 0x बोलेगा तो क्या है? 0 है, सो 6y minus 3 is equal to 0। यस इक्वेशन है, 0 है, सो इट इज वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल का जगह पे वन वेरिएबल। सो ओके इज द लीनियर इक्वेशन in two variable। Now while telling about even though it is the variable is there, so here you can say that it is a okay whether it is a two variable, yes it is only one variable is there, so only here it is of 0x, so it is only one variable is there, so it is not with the two variable। Okay but here x is there, but we here one more condition we can write this, okay a
is A is not equal to 0 and B is not equal, yes, that condition also must be there. Okay, A B 0 नहीं होना चाहिए, B भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओके, नाउ हियर अभी ए बी देखिए, इधर B 0 हो गया. ओके, बाकी सब तो सही है. ओके, सो दैट इट इज ऑल्सो नो. वाई नो? बिकॉज हियर वन वेरिएबल है, क्योंकि ये नहीं चलेगा. अंडरस्टैंड? जैसे कि ये नहीं चलेगा वैसा ये नहीं चलेगा. अभी ये जो केस में ओके, अगर देखा जाएगा तो इसको कैसा बोल सकते हैं, इसको 4/x डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, तो इसको 4⁻⁻1 हो जाएगा. अंडरस्टैंड? और 5 भी 5 प्लस 5⁻y. अभी y⁻⁻1 तो नहीं चलेगा, तो इट इज ऑल्सो नो आएगा. अंडरस्टैंड? अभी देखो ये जो है, अभी इसका डिग्री क्या है, इधर डिग्री x का 1 y का 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अंडरस्टैंड? सो दैट ये भी क्या है, नो है. अंडरस्टैंड? ऐसा आपको इसका आंसर लिखना है. अंडरस्टैंड? तो खाली फर्स्ट और सेकंड नो है, बाकी सब क्या है, यस है. अभी ये दोनों यस है, बाकी सब क्या है, नो है. अभी रीजन इधर लिखा है. अंडरस्टैंड? 2 वेरिएबल, इसका डिग्री है, इसका क्या है, x का वेरिएबल डिग्री क्या है, 2 है. इधर 2 वेरिएबल है, इधर ओनली 1 वेरिएबल है, इधर भी 1 वेरिएबल है, इधर डिग्री -1 है. आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड इट. ओके, इधर डिग्री ऑफ xy क्या है, 2 है. अंडरस्टैंड? सो दैट इट इज लाइक दिस. सो गॉट इट वेल? सो ये जो एक्टिविटी ऐसा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट. ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू डू सम रिविजन. ओके, इन दिस रिविजन, okay, here we are going to do how to solve the linear equation. Last year we studied that that is of simultaneous equation. Okay, that is 5x, okay, 5x plus 3y, okay, is equal to 28. ठीक है. Then we can write x plus y, okay, is equal to 6. Now the two equations I wrote. Okay, one is of 5x plus 3y is equal to 28. Yes, simultaneous equation with 2 variable, and the other is 3, that is x plus y is equal to 6. अभी देखो ये जो है, अभी अपन को इसको क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, सोल्व करना है. ओके, कैसे सोल्व करेगा? ओके, अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकता, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकता. अभी पहले देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू डू विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, अभी देखो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन इसको क्या देगा, इक्वेशन 1 देगा, इसको क्या देगा, इक्वेशन 2 देगा. अभी इक्वेशन 2, दैट इज फ्रॉम दिस इक्वेशन 2, ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन 2, ओके, क्या बोल सकता, यू कैन राइट y is equal to 6 minus x. What you did, this x is taken to the other side. ठीक है. So now substituting, look, substituting, it is substitution method. Okay, substituting y is equal to 6 minus x, okay, in equation, which equation, 1, because from 2 we are taken it, so 1. Okay, so that 5x, okay, plus 3. Now in the place of y, what we are going to put, 6 minus x is equal to, what it will become, 28. Getting? Okay, so that now look, so 5x plus, okay, now what we are going to do is 3 is going to multiply inside. Okay, so 3 6 are 18, okay, minus 3x is equal to 28. Got it well? Okay, now okay, see here it is, now 5x minus 3x, what it is, okay, 2x, correct. Okay, 2x is equal to 28. Now we are going to take this 18 to this side. Now plus 1 coming to this side, it will become minus, so that minus 18. Sure. So that 2x is equal to, what it is, 10. Sure. So x is equal to 10 upon 2 is equal to 5.
Understand here? So you got the value of x. Sure? Okay. Then what you can do now? Therefore, now again substituting. Okay. Substituting now x is equal to 5. Okay. In this, here it is. Okay, x is equal to 5. Okay, 5 in, what we can say, y is equal to 6 minus x. So which is equal to 6 minus 5 is equal to what become 1. Therefore, what we can say, x comma y is equal to what it is, 5 comma 1. Like that the solution is. Okay, this method is called the substitution method. So here what you have to understand is, okay, you have to understand that, okay, how to, okay, you have to understand that how to use this, okay, substitution. Now look, this is very important. Okay, okay, this is very important. Here part, this part is very important. Okay, why? Because, okay, here we are taken y is equal to c. Now here the substitution. Look here. Now here this y is equal to this. From here you got. Okay, so here in this place y. Okay, what we put? Okay, we put this. Look it here. Understanding? The substitution is very important aspect that you must have to remember very well. Understand? Like this we have to do. Okay, so you will solve this. Okay, then solve it fast. Okay, you can pause it and, or you can take the screenshot and do. Okay, we will go to the other part now. Okay, now here the same question I am going to do with the other method. Okay, that is now the next is which one is elimination method. Now let's see that, okay, how we can do with elimination method. Okay, 1 minute. Okay, the same one we are going to use elimination method. Okay, let the final answer be like that. Whether we are getting the same or not, let's see. Now in this case, now in order to get the elimination method, which method we are going to use? Okay, elimination method we are going to use. Okay, now here the elimination method we are going to use. Now in this elimination method, okay, in this elimination method, okay, what we have to do is, here any one of this is like terms, okay, like terms with the equal coefficient. Now, okay, 3 here, 5x here, x. We know here it is, what is the coefficient is 1, here it is 5. Okay, here it is, what it is, here it is 1, here it is 3. Now we have to make the like term with the same coefficient. Okay, now the coefficient is different. Now how can we make the coefficient equal? By multiplying. You can multiply 3 here, you can multiply 5 here. If you multiplied 5, okay, 5 से multiply करेगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x का term equal हो जाएगा, बराबर है? Now अगर 3 से multiply करेगा तो कौन सा equal हो जाएगा? y का term equal हो जाएगा, बराबर है? So जो easy है, जो छोटा है, okay, वो क्या कर सकते हैं अपन? करना सही रहेगा. So I am going to multiply, okay, 3, okay, with the equation 2. Understand? Equation 2 into 3 we are going to do. Okay, so what you will get? It will become 3x, okay, plus 3y is equal to, now 3 into 6, okay, that is 3 6 80. Understand here? That we are going to give it as 3. Okay, now look, here is 3x, here it is 3x. Sure? At this time, what you have to do is, now sign you have to take care of. Now what is that? Now you got the like term with the same coefficient. Here also 3, here also 3. Okay, now the sign you see. Here it is plus, here also plus. Now if the like term with the same sign, you have to subtract. What you have to do? Subtract. With the same coefficient with the different sign, one is positive and other is negative, then what you have to do is you have to add it. Understand?
If one is both are same sign, both are minus or both are plus, you have to subtract. If one is plus and other is minus, okay, then you have to add it. So in this case you got the like term, that is 3x and 3y you got. Okay, now coefficient also same, sign is also same, but then what you have to do? Subtract. Okay, subtract. Now which is to be subtracted? Now x now other coefficient, here x, which is greater? 5x is greater, so subtract 3 from 1. Okay, so first we will write 5x, okay, plus 3y, correct? Okay, is equal to, what is equal to 28. Okay, now third one, what you will write? 3x, okay, plus 3y is equal to 80. Okay, 80. Now what is very important is, okay, now here you have to leave little space in between this. So the sign conversion, we are subtracting, minus, plus become minus, this plus become minus, here the plus become minus. Now look, the second equations, okay, the given sign will not be used. Whatever the changed sign only you have to consider now. So here 5x not plus, 5x minus 3x, what it is? 2x. Okay, now here plus 3y minus 3y, it become to cancel. Now here 28 minus 80, that is equal to 10. Got it? So that it become 2x is equal to 10. So that x is equal to 10 upon 2 is equal to 5. Now the same procedure, but it is substituting, okay, x is equal to 5 in equation, which equation? 2. Because among this, which is smaller, okay, which is the, that is simple equation, which one is simple equation? कौन सा सिंपल है? ये जो सेकेंड वाला सिंपल है. ओके, इसलिए क्या करेंगे, उसमें अपन x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दैट इधर क्या इक्वेशन? इट इज ऑफ x, ओके, प्लस y इज इक्वल टू 6, बराबर. सो x का जगह पे क्या डाल रहा है? 5 डाल रहा है, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 6. ठीक है. So y is equal to, what you will get? 6 minus 1 is equal to, okay, sorry, 6 minus 5 is equal to 1. Understand? अभी देखो क्या मिला? x का वैल्यू 5 मिला, y का वैल्यू 1 मिला. Understand? पहला भी वही मिला था. So इसको क्या बोलते हैं? Elimination method. This is what the elimination method. Understand? So ये elimination method और substitution method, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो आप कर सकते हैं ये यूज़ करके, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके. श्योर? अंडरस्टैंड वेल? ठीक है. ओके, तो आप पॉज करके कर लेना. ओके, देन वी विल गो टू द अदर. ओके, अभी एक टेक्स्ट बुक का और एक एक्टिविटी है, दैट एक सोल्ड एग्जाम्पल का है. ओके, तो इधर कुछ एक्टिविटी है, दैट इज हियर. देखो, ये जो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, ओके, and 5x minus y is equal to 80. देखा, दो इक्वेशन दिया है. ओके, अंडरस्टैंड? ये दोनों इक्वेशन दिया है. नो, अपन को क्या करना है? सोल्व करना. सोल्व करना बोलेगा तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y का वैल्यू फाइंड करना. तो अभी इसमें से डिसाइड करना है कि कौन सा है. ओके, तो इन लोग ने बोला है कि क्या है? सोल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेटिंग. तो देखा जाए तो इधर 3x है, इधर एलिमिनेशन. ओके, तो एलिमिनेशन के लिए क्या होना चाहिए? लाइक टर्म विद सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए. ओके, तो इसमें छोटा कौन सा है वो देखना. इधर 3x है, 5x है, तो 3x और 5x को इक्वल करना इजी रहेगा, या 2x और y को इजी रहेगा? इजी रहेगा. खाली इक्वेशन 2 को क्या करेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इक्वल हो जाएगा, बराबर. ओके, इसलिए मगर एलिमिनेशन में देखो, फिल द सूट, अपन को तो सिर्फ फिल करना है. देखो, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 दिया है, ओके, और बाई 2 वाई, सो दैट ये जो वाई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दैट इधर क्या है? फर्स्ट को अभी इक्वल 2 को, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, सब टर्म को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो सब जगह क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया. अंडरस्टैंड? तो अभी 5 2 सा 10x, ओके, माइनस, ओके, इट इज, और 18 2 सा क्या आएगा? इधर 36 आएगा. अंडरस्टैंड? क्या आएगा? 36 आएगा. ओके, नाउ, ओके, लेट्स ऐड. अभी ये जो 3 दिया अपन ने अभी ऑलरेडी किया, तो अभी देखो इसमें फर्स्ट इक्वेशन
प्लस 2y है, इधर क्या है माइनस 2 है। अभी देखो लाइक टाइम है, ओके सेम कोएफिशिएंट है और साइन क्या है, अलग साइन है। अलग साइन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 193, ओके इक्वेशन 1 और 103 को ऐड कर रहे हैं, ओके सो दैट इधर क्या लिखेगा, इधर जो है अपन क्या लिखेगा 10x, क्या लिखेगा 10x, ठीक है। और इधर y का जगह पे इधर माइनस, इधर क्या है 2y, ओके इधर क्या आएगा 36, ठीक है। तो ऐड करेगा तो अभी प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। तो इधर 3x प्लस 10x है, इधर क्या मिलेगा 13x मिलेगा, बराबर 13 मिनट 13x बराबर है। 13x इज इक्वल टू ऐड करने का इधर क्या मिलता है, देखो इट इज ऑफ 5 बराबर, ओके देन 3 प्लस इट इज 5 65, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग अभी सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इधर 65 अपॉन 13, ओके 65 अपॉन 13 बोले तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, अंडरस्टैंड। नाउ लुक x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में डाल रहा है। अभी इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी, इधर तो इक्वेशन 1 बोला है, ओके सो दैट 3 और x का जगह पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है, ओके प्लस 2y इज इक्वल टू, सो दैट इधर क्या आएगा 3 5 सा 15 आएगा, ठीक है 15 आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 29, सो दैट 2y इज इक्वल टू, अब ये 15 वो बाजू लेके जा रहे हैं तो माइनस 15 हो गया, बराबर। सो 29 माइनस 15 बोले तो क्या हो गया 14 हो गया, बराबर। सो दैट क्या गया 14 अपॉन 2 क्या आएगा 7 आएगा, बराबर। देयरफॉर व्हाट वी कैन से y इज इक्वल टू, ओके व्हाट इज हियर, here it is, okay we can see that is here it is 5,7 is the solution। समझ में आया, लाइक दैट ये एलिमिनेशन स्टेप बाय स्टेप उन लोग ने दिया है, ओके समझ में आया। तो आप लोग ऐसा फिल कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। देखा लास्ट में ये टेबल ऐसा आपको फिल करना है, समझ में आया बराबर से। ओके ठीक है, देन वी विल गो टू एक्सरसाइज में, ओके अभी एक्सरसाइज का ओके एक फर्स्ट सम, ओके उसमें भी तो सेम फिल करना ही है आपको। अभी देखो इधर क्या किया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y। अभी देखो इधर जो है यह प्लस 3y और माइनस 3y, अभी क्या है लाइक टाइम में इक्वल कोएफिशिएंट है और साइन क्या है एक प्लस है एक माइनस है। अगर एक प्लस अब इधर प्लस है और इधर माइनस है, बराबर अलग साइन है, अलग साइन है तो आपको क्या करना है ऐड करना है, ध्यान में रखो। सेम साइन रहेगा तो क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, अलग साइन रहेगा तो क्या करना है आपको ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 192, तो इधर ऐड कर रहे हैं तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके तो 5x प्लस 2x क्या आएगा 7x आएगा, ये ऐड होएगा तो क्या आएगा 21 आएगा, श्योर। तो अभी x इज इक्वल टू अभी ये 7 को ये बाजू लेके आ रहे हैं, इंटू ये बाजू आए तो डिवाइड हो जाएगा, बराबर। सो 21/7 बोले तो क्या है 3 है, ओके नहीं पुट x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग, ओके इक्वेशन 1 में डाल रहा है। अभी इधर देखो एक प्लस है एक माइनस है, बराबर ना, ओके तो कभी भी प्लस वाला में सब्स्टिट्यूट करना क्योंकि थोड़ा साइन का गड़बड़ कम हो जाएगा। सो दैट इधर ओके 5 इंटू 3 देखा, इधर 5 x का जगह पे क्या डाला 3 डाला, बराबर। सो दैट प्लस ओके 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो इधर क्या है 5 3 सा 15, 15 को बाजू लेके आया तो माइनस हो गया, ठीक है। नाउ 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 बोले तो माइनस 6 हो गया। सो माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 3 इधर डिवाइड, माइनस 6 अपॉन 3 इज माइनस 2। सो व्हाट इज हियर द आंसर इज 3, -2। समझ में आया, श्योर। ऐसा जो है आपको ये क्यों कौन सा मेथड है, दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड जो बोलते हैं, ओके ऐसा समझ में। लास्ट ईयर किया है एक्चुअली, तो आपको ऐसा सोल्व करना है, ठीक है। तो कर लेंगे ये, यस ओके देन वी विल प्रोसीड, ओके नेक्स्ट इसमें जाएंगे, ओके। अभी देखो ईयर सोल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी इधर 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, तो ये आपका चॉइस है, ओके कौन सा करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है क्या, ओके एलिमिनेशन करना है कि आपका चॉइस है।
ओके तो कुछ जो केस में सब्स्टिट्यूशन, अभी देखो ये केस में इधर तो ये प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ओके दैट इज ये का वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। तो कौन सा मेथड इसी है, सब्स्टिट्यूशन, ओके इसी है। ओके सो इधर तो इन लोग नो हियर इट इज, हाँ देखिए यस इधर b, ओके ये b है, इधर भी b है, बराबर है। तो सेम टाइम है, ऐसा रहेगा तो अगर ऑलरेडी सेम टाइम रहेगा तो एलिमिनेशन इजी रहेगा, नॉट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं मगर एलिमिनेशन इजी होगा, ठीक है। सो दैट अभी देखो हियर इट इज फर्स्ट, ओके 3a, ओके 3a प्लस 5b, ओके इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, ओके नेक्स्ट इज a प्लस ओके 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 2। अभी आपको पता है दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों प्लस है, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट, आपको आइडिया मिला सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं करके, क्योंकि इसका साइन दोनों प्लस है। अगर दोनों प्लस, अगर दोनों ये जो लाइक टाइम विद सेम कोएफिशिएंट वाला है, ओके उसका अगर साइन दोनों का सेम रहेगा, तो अगर दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अलग अलग साइन रहेगा, अगर एक प्लस है एक माइनस है, तभी जाके आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके तो इधर सब्ट्रैक्ट है, ओके कौन सा भी, दैट इज 2 from 1। अभी देखो ये 2 from 1, 2 from 1 बोलेगा तो 1 से क्या करना है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहला कौन सा लिखेगा अपन, 1 ही लिखेंगे, ओके इवन दो इधर फ्रॉम लिखने का टाइम 2 पहले लिखेगा तो भी इक्वेशन। तो इधर क्या लिखेगा, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, ठीक है। दूसरा जो है a प्लस 5b, ओके इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो इधर थोड़ा जगह छोड़ देना, कभी भी सब्ट्रैक्ट रहेगा तो थोड़ा जगह छोड़ के बीच में नहीं। तो इधर क्या आएगा, माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ठीक है। तो अभी देखो ये दोनों क्या होएगा, सेम साइन विथ ऑपोजिट साइन हो गया, इधर कैंसिल हो गया। अभी इधर 3a माइनस है, अभी देखो नीचे जो साइन दिया उसको ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो 3a माइनस है, क्या है 2a, तो इधर क्या होएगा 2a इज इक्वल टू, अभी इधर 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 क्या है 4 है, ठीक है। सो दैट a इज इक्वल टू क्या आएगा 4/2, क्या है 4/2 बोलेगा तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, अदरवाइज पुट आल्सो यू कैन यूज, ओके सब्स्टिट्यूटिंग, ओके a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, अभी देखो इसमें 1 में भी डाल सकते 2 में भी डाल सकते, मगर देखो इधर 2 जो है फाइनल आंसर मैंने दिया है, उसमें तुम लोग ने कैसे किस में यूज किया, देखो 2 में, यस ओके इक्वेशन 2, ओके। अभी ये जो 2 में, अभी 2 क्यों यूज किया, क्योंकि वो सिंबल है। कभी भी जो इक्वेशन सेलेक्ट करना, अभी 1 नहीं यूज कर सकते क्या, 1 यूज कर सकता, तो क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि वो थोड़ा मतलब एज कम्पेयर टू द सेकंड, ओके सेकंड के साथ में अगर फर्स्ट थोड़ा टफ है, मतलब उसमें 3a है भाई, इधर तो ये तो अकेला है तो इजी वाला है, इसलिए अपन सेकंड चुन रहे हैं, ठीक है। सो दैट a का जगह पे क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं प्लस 5b, ओके इज इक्वल टू क्या आ रहा है 22, ठीक है। सो दैट 5b इज इक्वल टू क्या आएगा 22 माइनस 2, ओके सो 5b इज इक्वल टू व्हाट इट इज 20, ओके सो b इज इक्वल टू 20/5, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4, सो व्हाट यू कैन राइट, सो a comma b is equal to what is a is 2,4, understand like this it is, understand। अभी देखो मैंने तो ऐसे लिखा है, आप लोग को समझा रहेगा तो भी ओके, आप लोग को ठीक से ये करने के लिए मैंने ऐसा ओके ये यूज़ किया है, तो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ क्योंकि लेजिबल है ओके और ये प्रॉपर है, तो आपको सब ये मतलब समझने में तकलीफ नहीं रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। एक्चुअली दिस इज समझने के लिए यही है, इधर आपको पोस्ट करके ये समझ सकता है ओके, और आपको लिखने के लिए ये जो यूज़ करके आपका नोटबुक में ओके कर सकता है। करना कॉपी मत कीजिए, ओके डोंट कॉपी इट, ओके आप पोस्ट करो, समझ के लो, और क्या करो आप लोग खुद करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। और दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी यूजफुल ऑल्सो, आप पोस्ट करके आप आराम से इसको ओके रख के आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टेप्स नहीं मिल रहे तो आप देख लीजिए वापस से,
ओके तो इस तरह कौन सा मतलब बराबर है क्या, कभी भी अपन जो लिख रहे हैं उसको कंपेयर करो, कॉपी डायरेक्ट मत कीजिए। ओके इट विल नॉट हेल्प यू, कभी भी सम अपन जो करने का टाइम बोर्ड से कॉपी करने से ओके आपको वो यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ लेना। ओके देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वन। ओके नाउ हियर इट इज, अभी ये कौन सा मेथड है? ओके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ओके तो इधर देखो ये भी हियर दो इक्वेशन है, दैट इज फर्स्ट इज x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, अदर इज ऑफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। देखो इधर जो है दैट इज x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या है 10 है। ओके 7y, तो अपन क्या करेंगे इसको x इज इक्वल टू ओके क्या करेंगे 10 ओके माइनस 7y। ओके इसको इक्वेशन 1 देगा। ओके अभी दूसरे इक्वेशन कौन सा है, 3x है माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन क्या है 2y। अभी सब्स्टिट्यूटिंग ओके व्हाट डू यू कैन से, सब्स्टिट्यूटिंग ओके दिस x is equal to 10 minus 7x सॉरी 7y इन इक्वेशन कौन सा इक्वेशन में 2 में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इधर x का जगह पे देखो 3 और x का जगह पे क्या डाल रहे हैं, ये जो ओके 10 माइनस 7y डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 10 माइनस ओके विल यूज दिस ओके 10 माइनस 7y डाल रहे हैं। ओके माइनस अगेन क्या है माइनस माइनस ओके व्हाट यू विल गेट अभी 2y ओके इज इक्वल टू 7। अभी देखा मैंने जो x का जगह पे इधर जो x है, ये जो x का जगह पे क्या डाला, ये जो 10 में ये सब्स्टिट्यूट किया। अभी ये जो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो 3 10 सा 30 माइनस 3 7 सा 21y ओके माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी देखो ये दोनों ऐड कर सकते, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो ऐड करके कॉमन साइन दैट इज माइनस 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 30 बराबर है, क्योंकि प्लस 30 उधर गया तो माइनस 30। समझ रहे सबको? तो अभी देखो सो माइनस 23y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस 23 मिलेगा। सो y क्या है, सो y इज इक्वल टू माइनस 23 अपॉन माइनस 23, वो क्या हो गया 1 हो गया। अंडरस्टैंड? सो y का वैल्यू मिला 1। अभी क्या बोल सकते हैं, वी आर पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन कौन सा इक्वेशन, अभी इसमें डालना इजी रहेगा, ये जो इसमें। ठीक है, सो दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। ठीक है, सो दैट x इज इक्वल टू 10 माइनस ओके 7 इंटू y क्या है, y बोले तो 1 है, सो दैट 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या है 3। समझ में आया? देयरफॉर वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से x कॉमा y कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। ओके ए बी है तो पहला ए फिर बी, ओके एम एन है तो पहला एम फिर एन, एक्स वाई है करके फिर x फिर y। ओके इज इक्वल टू कौन सा आएगा 3 कॉमा 1। अंडरस्टैंड? लाइक दिस टू। समझ में आया? ये कौन सा मेथड किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया। पहले वाला भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते थे। ठीक है, गॉट इट वेल? सो इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों बोल रहे हैं, तो ये जो है आपको समझना है। ओके दैट इज कौन सा है करके है जो ओके देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंपॉर्टेंट इधर है। ओके जिधर x है उधर अपन क्या किया, ये जो 10 माइनस देखा 10 माइनस 3y को डाल। अंडरस्टैंड? ये आपको समझना चाहिए। श्योर? समझ में आया बराबर से? एक बार देख लीजिए, ओके नहीं तो वापस जाके देख लीजिए। सो ईयर द सम ऐसा करेंगे सेम। अब मैंने जो एक्सप्लेन किया वही देखा, इधर जो है x का जगह पे क्या डाला, ये सब डाला। ओके सो यही अंदर मल्टीप्लाई किया 3 को, तो 30 माइनस 21 हो गया। ओके लाइक दिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड बराबर है। सो लास्ट फाइनल आंसर लिख लेना है, ऐसा ही लिखना है आपको फाइनल आंसर, और इसलिए आपको ठीक से समझने के लिए मैंने यह जो ऐसा किया है। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट सम में आप पॉज करके आप कर लेंगे।
कॉपी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इधर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x ओके प्लस y इज इक्वल टू 30। ये देखो इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, तो क्या है एलिमिनेशन इजी होगा। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन भी चाहिए तो कर सकते हैं क्योंकि इधर y अकेला भी तो है। ओके, तो एक्चुअली कौन सा मेथड यूज किया है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए पहला कौन सा 2x ओके माइनस 3y ओके इज इक्वल टू 9, ठीक है। ओके, दूसरा जो है ओके इक्वेशन 1 ओके, फिर दूसरा जो है इक्वेशन 2x ओके प्लस y इज इक्वल टू कौन सा है 30। अभी देखो इक्वेशन 2, अभी अपन को क्या करना है, अभी दोनों इधर भी प्लस है इधर भी 2x देखा, ये 2x जो है ओके, ये जो 2x में ओके ये जो 2x में इधर भी 2x प्लस है इधर भी 2x प्लस है, अगर दोनों का सेम साइन रहेगा तो अपन को क्या करना है, ऐड करना है। तो इधर अपन क्या कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, ठीक है, एडिंग ओके 1 and 2 ओके। तो एडिंग सॉरी सेम साइन है ना, तो एडिंग नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी ओके। तो इधर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एडिंग नहीं ओके, क्या है सब्ट्रैक्ट ओके, सब्ट्रैक्ट करना है, समझा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इधर दोनों प्लस है, तो मैंने इधर थोड़ा जगह छोड़ के ओके, तो इधर क्या आएगा माइनस ओके, इधर भी ओके ये निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इधर भी माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस, समझे। सब्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जगह छोड़ना है और सबको आपको सेकंड इक्वेशन जो भी लिखता है उसका सबका साइन का उल्टा करना है। इधर प्लस है तो माइनस, इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस करेगा। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है। अभी माइनस 3y माइनस वाई, अभी प्लस वाई नहीं, ये माइनस वाई, माइनस 3y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इस क्या है माइनस 4, ठीक है। सो दैट ठीक है, सो दैट y क्या है, सो y इज इक्वल टू -4 अपॉन -4, ठीक है। या -4 को ओवर जो लेके जाए, तो अभी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 है। अभी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटिंग ओके, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में डालेंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में डालेंगे। इन लोग ने अपन इसमें जो दिया वो कौन सा इसमें डाला है देखो, 1 इन इक्वेशन ओके इक्वेशन 2, समझ में आया। क्यों इक्वेशन 2 समझ रहेगा, वो सिंबल है इसलिए। सो दैट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो दैट 2x इज इक्वल टू व्हाट इट इज 13 माइनस 1, so 2x is equal to 12, so x is equal to what it is 12 upon 2 is equal to 6, समझ में आया। अभी देखो, so what you can say final answer x comma y okay is 6 comma 1, understand like that, the final answer it is, that is the solution it is called, understand it okay. You can do it okay, you can do like this okay, but better okay you use these steps okay, it is okay eligible okay, आपको ये समझने में इजी रहेगा, तो आपको ऐसे ही करना ओके। सेम यही सब इधर इधर जो भी लिखा है वही इधर जो है ओके दिया है, सो दैट आपको समझेगा, ठीक है। तो दोनों आपको पॉज करके आप कर लीजिए ओके, श्योर, बट प्लीज डोंट कॉपी ओके। कभी भी सम करने का क्या है, समझने के बाद आपको खुद करना है। अगर कुछ डाउट आया आपको ओके कुछ स्टेप्स नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, आप इधर देख स्क्रीन में देख सकते कि कौन सा मेरे को मिस्टेक आया, कौन सा स्टेप में मिस्टेक आया ओके। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप पूछ सकता है, कमेंट डाल सकता है, सो दैट ओके इट विल बी क्लियर, श्योर। सो दैट इज अबाउट इट
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बट डू प्रैक्टिस। ओके, एक बार इसको वापस करना है, एक बार आज करेंगे और एक बार कम से कम वापस करना है। ओके, तभी जाके आपको समझेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।